So we were talking about two things, doer of action and receiver of action. Yes, yesterday we were doing these two things, doer of action and receiver of action. Receiver, receiver, receiver of action. So when a person is a doer of action and he is a boy, then which pronoun do we use for that person? Is it him Sir, or he? he. He. Very good. If the person is the doer of action, then the pronoun used for that person is he. Very good. But if that person is not the doer, rather that person, that boy is the receiver of action, then what do we do? Sir, him. Him. Very good. So him. Okay. Now if a person is the receiver of sorry, if the person is the doer of action, if the person is the doer of action and that person is a girl, then what do we write? You'll have to Sir, raise her. hand. You'll have to raise hands. Sir, her. Only raise hand when the person is the doer of action, and that person is a girl. If a girl is the doer of action, then which pronoun do we use for that person? Okay, let me ask Hamza this time. Yes, Hamza? Sir, she. She. Very good. We write she. But if that person, which is, I mean, if a girl is the receiver of action, then which pronoun do we use for that person? Okay, Manha? Sir, her. Her. Very good. Okay. if if many people are the doer of action, if many people are the doer of action, then which pronoun do we use for them? Okay, Alicia, Alicia. Sir, they. They. Very good. If many people are the receiver of action, if many people are the receiver of action, then which pronoun do we use for them? Okay, Heather. Sir, we. No. We is used for many people, including us. So not we. When many people are the receiver of action, and okay, yes, Hanzala. Yes, Hanzala. Unmute yourself, please. Hanzala, can you unmute yourself? Okay, Hamza. Hamza. Yes, sir. Yeah, you're raising hand. You want to give answer? Yes, sir. Yeah, go ahead. Sir, them. Them. Very good. Them. Now, if if yes, Umar, you're saying something. Yes, Umar, you're saying something. Umar, you're saying something. You'll have to unmute yourself. Okay. I think Umar, you're not able to unmute yourself. You'll have to send me a message on Zoom chat, right? All right. If the doer of action, if doer of action are many people, including, me, हम हम और हमारे आसपास वाले लोगों को मिलाकर अगर हम सब डूअर ऑफ एक्शन हैं, तो हम सब के लिए व्हाट वुड बी द इंग्लिश प्रोनाउन फॉर दैट? If uh, you know me and my people are the doer of action, then are the doers of action, then which pronoun would be used for this in this case? Anyone who has any idea? Anyone who has any idea, raise your hand.
Okay, okay, okay. Right. Yeah, Munazza. Yes, Munazza. Yes, Munazza. Sir, the idea is Hmm. sir, if we use for there to be always use she, they. नहीं, मेरे मेरे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के जूम चैट पर मैसेज आ रहे थे तो मैं उनको रिस्पांस दे रहा था। अब मैं आपकी बात को भी सुन सकता हूँ। और देखिए, ओके, मेरा सवाल ये है कि अगर हमें ये बताना हो कि हम अगर हमारे बारे में बात हो रही हो, हम और हम डूअर ऑफ एक्शन हो, रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं, बल्कि हम डूअर ऑफ एक्शन हो। जैसे कि हम कल इंडिया गेट गए, हम कल इंडिया गेट गए, तो हम इस केस में जो है वो डूअर ऑफ एक्शन हो गया। कौन गए? हम गए, राइट। तो इस केस में हम के लिए इंग्लिश प्रोनाउन कौन सा होगा? विच इंग्लिश प्रोनाउन वुड बी यूज्ड इन दिस केस? यस अयान? यस अयान? ओके। इरम? सर वी। वी, वेरी गुड, वी। लेकिन मान लीजिए अगर हम रिसीवर ऑफ एक्शन है, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, बल्कि हम रिसीवर ऑफ एक्शन है। जैसे कि बच्चे, हमारे पापा आए और आकर उन्होंने हमें डांटा। हमारे पापा ने हमें डांटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? डाटा किसने? पापा ने। तो पापा तो हो गए डूअर ऑफ एक्शन। डाटा गया किसको? हमें डाटा गया, तो हम हो गए रिसीवर ऑफ एक्शन। इस केस में हम के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या हम वी यूज करेंगे या हम क्या यूज करेंगे? ये मुझे पूछना है। चलिए ये आंसर लेते हैं अलीशा से। अलीशा ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। जैसे अलीशा? सर दे। नहीं, दे या फिर सर them। दे या देम यूज थोड़ी होगा इस केस में। हम पापा ने आकर हमें डांटा, पापा ने आकर हमें डांटा। तो डूअर ऑफ एक्शन तो पापा है, पापा ने डांटा। रिसीवर ऑफ एक्शन हमें डांटा। उस केस में पहले वाला केस क्या था? हम इंडिया गेट घूमने गए, तो वहां पे तो हमने वी इस्तेमाल कर लिया। वी वेंट टू इंडिया गेट, वी वेंट टू विजिट इंडिया गेट। लेकिन नहीं, हर तो बेटा लड़की के लिए इस्तेमाल होगा अलीशा। ओके, let me take this answer from Heather this time. Yes, Heather? सर वी कैन यूज मी। नहीं, मी तो फिर मुझे डाटा हो गया ना। मी का मतलब तो हो गया मुझे डाटा। मैं बात कर रहा हूं हमें डाटा, हमें। तो ठीक है, अयान आप एक बार ट्राई करके देखिए, शायद अब आपका माइक अनम्यूट हो जाए। नहीं हो रहा है शायद आपका माइक अनम्यूट। अयान आप मीटिंग छोड़ के दोबारा ज्वाइन कीजिए, शायद उससे काम चले आपका, राइट? ओके, अलीशा का हैंड डाउन कर देते हैं। ओके, हमजा? Yes, sir. Sir, it will be us. It will be us. The father came and scolded us. अब बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं। The father came, पापा आए, and father came and scolded बच्चे लिख देते हैं scolded we, कि हमें डांटा तो हम के लिए तो वी इस्तेमाल होता है, वो लिख देते हैं scolded we. वी इज नॉट करेक्ट। जहां पर ये ज्यादा लोग डूअर ऑफ एक्शन नहीं है बल्कि रिसीवर ऑफ एक्शन है, क्योंकि उनको डांटा गया है। उन्होंने नहीं डांटा है बल्कि उनको डांटा गया है। तो वहां पे आप लिखेंगे अस, वी नहीं लिखेंगे। अब वी कहां पर इस्तेमाल हो सकता था? वी इस्तेमाल हो सकता था यहां पर। कहां पर? अगर मैं ऐसे लिख दूं, अस scolded the boys for नहीं, making जो हो गए तो making noise. Us scolded the boys for making noise. हमने
बॉयज को डांटा शोर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अस जो वर्ड लिखा हुआ है ये अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अस नहीं हो सकता यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा वी स्कोल्डेड द बॉयज। यहाँ पे हम डूअर ऑफ एक्शन है, हमने बच्चों को, हमने लड़कों को डांटा। तो यहाँ पर हम डूअर ऑफ एक्शन है क्योंकि हमने डांटा था, राइट। सो यहाँ पर वी इस्तेमाल होगा। लेकिन जब भी रिसीवर ऑफ एक्शन होता है तब वी का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि अस का इस्तेमाल होगा, राइट। चलिए अब एक और चीज बचती है, वो है आई। मैं अगर डूअर ऑफ एक्शन हूं, राइट, अगर मैं डूअर ऑफ एक्शन हूं और मैं कह रहा हूं कि आई रिस्पेक्ट माई कंट्री अ लॉट, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री अ लॉट, मैं अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करता हूं। तो यहां पर क्योंकि मैं अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करता हूं, रिस्पेक्ट कौन करता है, मैं करता हूं। तो यहां पर जो डूअर ऑफ एक्शन है वो मैं है, रिस्पेक्ट करने वाला मैं हूं। तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड बनेगा, यहाँ पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो आई इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ हो, द कंट्री इज रिस्पेक्टेड बाय आई, कंट्री मेरे द्वारा रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं, आई जो वर्ड है, दैट डजंट दिस वर्ड आई लुक स्ट्रेंज हियर, लग रहा है ना स्ट्रेंज यहाँ पर। अरहम, क्या मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है करेक्ट? सर मी। एग्जैक्टली। यहाँ पे आई लुक्स एब्सर्ड, स्ट्रेंज, देयरफॉर वील यूज मी हियर। द कंट्री इज रिस्पेक्टेड बाय मी, कंट्री मेरे द्वारा रिस्पेक्ट की जाती है। सो राइट। अच्छा, और क्या बचता है? आई थिंक ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस, एंड आई का हो गया मी, राइट। अच्छा, यू, अब आते हैं यू पर। हाँ, यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यू पर आते हैं, राइट। अगर यू डूअर ऑफ एक्शन है, अगर यू डूअर ऑफ एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल तुमने ये एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें ये असाइनमेंट करना है, ठीक है, तुम्हें ये असाइनमेंट करना है। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? अबान, कैन यू टेल मी? तुम्हें ये असाइनमेंट करना है। अबान, कैन यू टेल मी अगर इसे इंग्लिश में? Yes, sir. Yes. Sir, it will be you have to do this assignment. Right. You have to do this assignment. Doer of action कौन है? तुम, you, आप, right? So इसीलिए यहाँ पर हम you इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए सामने वाला इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। रिसीवर ऑफ एक्शन कैसे हो सकता है? तुम्हें, पापा ने तुम्हें डांटा, पापा ने तुम्हें डांटा, पापा ने तुम्हें डांटा। अब इसमें क्या हो रहा है? डांटा किसने? पापा ने डांटा। डूअर ऑफ एक्शन कौन है? पापा। डांटा किसको? तुम्हें डांटा। रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? तुम हो। अब उस केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एनीवन हु कैन फ्रेम एन इंग्लिश सेंटेंस फॉर दिस? पापा ने तुम्हें डांटा। द फादर, यस उमर, Sir, या उमर, sir, the father scolded you. The father scolded you. अब यहाँ पे तो बहुत अजीब बात हो गई, यहाँ पे तो हमने इसको चेंज ही नहीं किया। The father scolded you, सॉरी बाय यू हो गया गलती से, you। इस केस में ध्यान ये रखना होता है कि you ही अकेला ऐसा केस है जिसमें अगर डूअर ऑफ एक्शन है तब भी यू इस्तेमाल होगा और रिसीवर ऑफ एक्शन है तब भी यू ही इस्तेमाल होगा। इसीलिए डूअर ऑफ एक्शन हो या रिसीवर ऑफ एक्शन हो, यू वुड रिमेन यू ओनली। यू को हम चेंज नहीं करते हैं। ही बन जाएगा हिम। एग्जाम्पल के तौर पर ही इज गोइंग टू द पार्क, वो पार्क में जा रहा है, राइट। अगर हम कहें कि
टीचर उसको क्लास में लेकर जा रहे हैं, द टीचर इज टेकिंग हिम टू द क्लास, वहां पर टीचर इज टेकिंग ही टू द क्लास नहीं होगा बल्कि हिम होगा, क्योंकि उसे टीचर लेकर जा रहे हैं, तो टीचर डूअर ऑफ एक्शन है और वो रिसीवर है, उसको लेकर जाया जा रहा है, राइट। सो द टीचर इज टेकिंग हिम टू द क्लास, ही हिम क्लियर हो गया, राइट। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं यहाँ से, सब लोग पहले हैंड डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहा हूं। और अगर आपको कुछ बोलना हो मैं एक बार एग्जांपल्स दे दूं, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, राइट। मैं एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से उन एग्जांपल्स को सुनिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फिर पूछिएगा, राइट। अभी अनम्यूट मत कीजिए खुद को, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया, लेकिन आप अपने आप को म्यूट ही रखिए ताकि आपके कोई बैकग्राउंड नॉइज मुझ तक नहीं आए, राइट। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। ओके, पहला एग्जाम्पल ही और हिम का है। ही जब डूअर ऑफ एक्शन होता है लड़का, तब हम ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर लड़का रिसीवर ऑफ एक्शन होता है तो हम हिम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू द स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है, वो जा रहा है, तो वो खुद डूअर ऑफ एक्शन है, राइट। ही इज गोइंग टू द स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर ये बन जाए कि उसको स्कूल ले जाया जा रहा है या उसके फादर उसको स्कूल लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे लेके जाने वाले इंसान कौन है, फादर, राइट। और ये जो लड़का है ये बन जाएगा रिसीवर ऑफ एक्शन, तो उस केस में हो जाएगा द फादर इज टेकिंग हिम टू द स्कूल, वहां पर हिम का इस्तेमाल होगा, राइट। अगर लड़की है डूअर ऑफ एक्शन है तो फिर शी है, और अगर रिसीवर ऑफ एक्शन है तो हर है। कैसे, वो ऐसे, पहले ये देख लेते हैं। हैदर प्लीज म्यूट योरसेल्फ, शोर आ रहा है। हाँ, पहला एग्जांपल, शी इज स्टडिंग इन द क्लास, वो क्लास में पढ़ रही है। डूअर ऑफ एक्शन कौन है, वो लड़की, वो क्लास में पढ़ रही है, इसलिए शी इज स्टडिंग इन द क्लास। अगर हम कहें कि उसको टीचर पढ़ा रही है, अब इस केस में डूअर ऑफ एक्शन टीचर है, क्योंकि टीचर पढ़ा रही है और उसको पढ़ाया जा रहा है, सो वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, इसलिए हो जाएगा द टीचर इज टीचिंग हर इन द क्लास, द टीचर इज टीचिंग हर इन द क्लास। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे द टीचर इज टीचिंग शी इन द क्लास, बल्कि हम लिखेंगे द टीचर इज टीचिंग हर इन द क्लास। ऐसे ही अगर बहुत सारे लोग हैं और डूअर ऑफ एक्शन है, तो हम वहां पर दे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, तो वो क्योंकि देख रहे हैं इसलिए वो डूअर ऑफ एक्शन है, इसलिए वहां पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अगर हम अगर ये रिसीवर ऑफ एक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर द ग्रैंडफादर उनसे बात कर रहे हैं, ग्रैंडफादर उनसे बात कर रहे हैं, या फिर ग्रैंडफादर उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हुआ, डूअर ऑफ एक्शन है ग्रैंडफादर और रिसीवर ऑफ एक्शन है वो लोग, उनके साथ मीटिंग की जा रही है, राइट। सो यहां पर हो जाएगा द ग्रैंडफादर इज हैविंग अ मीटिंग विद देम, अ मीटिंग विद दे नहीं बल्कि अ मीटिंग विद देम। इसी तरह से अगर हमें बताना है हमें मिला के हम लोग, अगर हम लोग डूअर ऑफ एक्शन है, अगर ऐसा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जहां पे हमारे बारे में बताया जा रहा हो, यानी हम और हमारे दोस्त और हमारी फैमिली, हम अपने बारे में बता रहे हो बहुत सारे लोग, तब वहां पर वी का इस्तेमाल किया जाता है अगर वो डूअर ऑफ एक्शन है। जैसे वी आर गोइंग टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर, हम इस साल सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, जा कौन रहा है, हम जा रहे हैं, इसलिए हम डूअर ऑफ एक्शन है, हमारे लिए वी का इस्तेमाल होगा। हम ये नहीं कहेंगे अस आर गोइंग टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर, नो, हम डूअर ऑफ एक्शन है तो हम कहेंगे वी आर गोइंग टू सऊदी अरेबिया दिस ईयर। लेकिन अगर हम रिसीवर ऑफ एक्शन है तो उस केस में हम वी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि प्लेन ने हमें सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर उतार दिया, प्लेन ने हमें सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर उतार दिया। उतारा किसने, प्लेन ने। डूअर ऑफ एक्शन कौन है, प्लेन, और रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है, हम, क्योंकि हमें उतारा गया है। तो उस केस में सेंटेंस बन जाएगा द प्लेन डीबोर्डेड अस भी कह सकते हैं या ड्रॉप्ड अस भी कह सकते हैं। सो द प्लेन ड्रॉप्ड अस ऑन द एयरपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉप्ड अस, हम ये नहीं बोलेंगे द प्लेन ड्रॉप्ड वी ऑन द एयरपोर्ट, बल्कि ड्रॉप्ड अस ऑन द एयरपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, राइट।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. जिन जिन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, इट्स फाइन जाजिम, इट्स फाइन इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास and you are late because of network, it's fine, right? So yeah, किसी को भी कोई confusion है तो मुझसे पूछिए अभी तक. anyone having any confusion? I can't understand in the us. हाँ बेटा. Sir, I can't understand in us. You can understand. Have you understood this? Yes, sir. I can in us. अस समझ में नहीं आया बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं. आपका आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है. आप कह रहे हैं कि मुझे अस समझ में आया या नहीं आया? हैदर बेटा. सर नहीं आया. नहीं आया, अच्छा नहीं आया, ठीक है. हैदर के अलावा और कोई बच्चे जिनको इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो? सर मुनज्जा, क्या समझ में नहीं आया? सर आपने जो अभी समझाया है एरोप्लेन वाला और अस वाला. ठीक है, एरोप्लेन वाला एस वाला नहीं आया समझ में. इसके अलावा और बच्चे बताइए. सर हमें भी वही नहीं आया है, एरोप्लेन वाला और अस वाला. चलिए, एरोप्लेन वाला थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल हो गया, इजी एग्जाम्पल समझते हैं. अस का इस्तेमाल वहां पर होता है जब हमारे बारे में बात की जा रही हो लेकिन हम डूअर ऑफ एक्शन ना हो बल्कि रिसीवर ऑफ एक्शन हो. हमसे मतलब है मैं और मुझे मिला के मेरे आसपास वाले. यानी आप अपने आप को सोचिए और अपने साथ के लोगों को सोचिए. अगर आप अपने और अपने साथ के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे आप वी का इस्तेमाल करेंगे और अस का इस्तेमाल करेंगे. वी का इस्तेमाल उस केस में करेंगे जब आप डूअर ऑफ एक्शन है, जब आपने खुद कोई काम किया है. एग्जाम्पल के तौर पर, वी अटेंडेड द इस्लामिक स्टडीज क्लासेस, ISL क्लासेस दिस वीक. हमने इस हफ्ते इस्लामिक स्टडीज की क्लासेस अटेंड करी. अटेंड किसने करी? हमने करी. तो डूअर ऑफ एक्शन कौन है? हम है, क्योंकि हम अटेंड करने के लिए गए, राइट? तो यहां पर वी इस्तेमाल होगा. यहां पर अगर इसकी जगह मैं अस लिख दूं और कहूं अस अटेंडेड द ISL क्लासेस दिस वीक, तो वो अजीब लगेगा, गलत हो जाएगा. इसीलिए हम वी कहते हैं, वी अटेंडेड द इस्लामिक स्टडीज क्लासेस. अगर हम डूअर ऑफ एक्शन है तो वी का इस्तेमाल करेंगे. तो भाई फिर अस का इस्तेमाल कहाँ होगा? क्योंकि अस भी तो हमारे ही बारे में इस्तेमाल होता है ना, हम और हमारे साथियों के बारे में. तो अस का यूज कहां पर होगा? अस का यूज वहां पर होगा जहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे बारे में, लेकिन हम डूअर ऑफ एक्शन नहीं है बल्कि रिसीवर ऑफ एक्शन है. रिसीवर ऑफ एक्शन किस तरह से? एग्जाम्पल के तौर पर द प्रेसिडेंट ने हमें राष्ट्रपति भवन में बुलाया है. प्रेसिडेंट ने हमें राष्ट्रपति भवन में बुलाया है. तो यहां पर मुनज्जा डूअर ऑफ एक्शन कौन है? इस सेंटेंस में प्रेसिडेंट ने हमें राष्ट्रपति भवन में बुलाया है. मुनज्जा, इस सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन कौन है? सिर्फ मुनज्जा बताएंगी. जिनसे पूछूंगा सिर्फ वो बताएंगे. बेवजह माइक अनम्यूट करके हैदर बोलना नहीं है, पहले परमिशन लेना होती है. माइक हैंड रेज करिए. सर आपकी आवाज स्लो आ रही है, क्वेश्चन रिपीट कर दिए. क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ने हमें राष्ट्रपति भवन बुलाया है. तो यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन कौन है? सर अस नहीं. इसका मतलब मुनज्जा आप सुन ही नहीं रही हैं. अगर आप सुन रही होती हैं तो बहुत सिंपल सी बात मैंने पूछी है, आपने 100% बता दी होती. हंजला, प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही नहीं हो रही है. हंजला सर प्लीज रिपीट. सर प्रेसिडेंट. मैंने कहा क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट ने हमें राष्ट्रपति भवन बुलाया है. अब यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा हूं डूअर ऑफ एक्शन कौन है? सर कैन हमजा टेल? यस सर प्रेसिडेंट डूअर है. प्रेसिडेंट
डूअर है। प्रेसिडेंट डूअर है। कौन कौन लोग इस बात से अग्री करते हैं कि प्रेसिडेंट डूअर है? Sir, my meeting is glitching. Yeah, Aban, I can understand this thing. These days, Zoom is actually causing a lot of trouble. Okay, good. Put your hands down, everyone. Lower down your hands, everyone. प्रेसिडेंट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है, कि प्रेसिडेंट ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो हम रिसीवर ऑफ एक्शन हो गए उस केस में। अब क्योंकि हम रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो इसीलिए हम अपने लिए वी का इस्तेमाल ना करते हुए अस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिसीवर ऑफ एक्शन में अस का इस्तेमाल किया जाता है। सो द प्रेसिडेंट हैज इनवाइटेड, प्रेसिडेंट ने हमें मिलने के लिए बुलाया, तो द प्रेसिडेंट हैज इनवाइटेड वी टू द राष्ट्र भवन, राष्ट्रपति भवन। ये सही है ना सेंटेंस बच्चों? Yes, sir. नो सर, नो क्यों सर। इसमें क्या गड़बड़ है? सही तो लिखा है ना मैंने, द प्रेसिडेंट हैज इनवाइटेड वी टू द राष्ट्रपति भवन। अस। क्या गड़बड़ है इसमें? सर अस। अब आपने सही बताया, यहाँ पे वी नहीं होगा, यहाँ पे होगा अस, क्योंकि हम रिसीवर ऑफ एक्शन है। यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन प्रेसिडेंट है, हम रिसीवर ऑफ एक्शन है, इसीलिए द प्रेसिडेंट हैज इनवाइटेड अस टू द राष्ट्रपति भवन। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा बच्चों के।